Hello guys, welcome back to my daily vlog. So in this actually vlog, basically I've decided कि मैं majorly बात करूँगी corporate के बारे में, the tip and tricks which I use in corporate to survive and the problem which I face on daily basis या फिर partially once in a while. So let's start with a very basic problem which I feel sometimes यार nobody is listening to us. So whatever point you want to put हम वो put नहीं कर पाते. Maybe the confidence issue or maybe the communication is not clear or maybe हम लोग के साथ इतनी अच्छी image नहीं बची. मे बी मतलब होता है कि बहुत से जगह ऐसे होते हैं कि आपके सुपीरियर्स जो होते हैं, सीनियर्स जो होते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं, वो इतना मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इतना कंफर्ट आपको नहीं प्रोवाइड करते होते हैं, या फिर आप उनके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिख पाते होते हो, ठीक है, या फिर रखना चाहते हो आपको सुनते नहीं है, तो दिस डीमोटिवेट्स यू. So today this is happening with me in one of the meetings कि I was trying to put a point there and maybe शायद वो point valid नहीं होगा, maybe or maybe it was valid, but as for me it was valid one, it was very very valid one and I was emphasizing a lot on to that thing, but they were not hearing it, they were not even considering it. मतलब होता है ना कंसिडर कि हाँ ना इंसान बोल देता है या फिर they just give a feedback, no पर we consider this thing but we can politely give a feedback, maybe it's not valid here जो भी है, but and पता है for many people out there it can become an ego issue, ठीक है, बट मैं इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ इन द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है अगर आप इन चीज़ों को अपनी ईगो पे ले जाओ कि यार ये होते कौन है, इन्हीं का काम है, इन्हीं को लाइक देयर वाज अ टाइम इन लाइफ आई यूज्ड टू थिंक लाइक दिस, इन्हीं का काम है, इन्हीं का काम मैं करके दे रही हूँ, मेरी ही बात नहीं सुन रही तो मेरा क्या जा रहा है, नहीं होगा इनका काम, डजेंट मैटर, आप लगाओ 2 घंटा बैठ के, मेरे को पता है सोल्यूशन क्या है, लगाओ आप 2 घंटा बैठ के, ठीक है, बट दिन सब तो समझ में क्या आया मेरे को कि यार let's not make it an ego issue. इससे आपकी learning stop हो रही है. This is something I've learned instead of picking up this attitude. This is something I've learned from my manager. Never to lose your calm. आप calm रहो. अपनी communication को इतना better बना लो कि आपकी बात को सुनी जाए. आप better words use करना start करो. Better, more professional, right words at the right time. It always works. People gonna listen you. ठीक है. But अपनी pace को, अपनी calmness और अपनी pace को maintain रखें. You know, अपने voice में वो aggression नहीं आना चाहिए या फिर irritation नहीं आनी चाहिए. उसको maintain रखें. So I'm also ready for office and तो चलते हैं ऑफिस के लिए. Let me show the whole look in back mirror. और ऐसे आज पूरे दिन ना बहुत सारी ऑफिस रिलेटेड बातें करते रहेंगे इस ब्लॉग के अंदर ना. The problems I face or whatever tip and tricks I can guys give you. So this is the final look for the day. Basically I'm leaving for office from office actually and today was a chill day. Leaving for now. we're planning friends at dinner पे जाने का. Just gonna go there. So basically this is the look I have decided for today's dinner. It's comfortable, it's cozy, and at the same time it's like very casual, very decent. This is one I got from the Fab Alley. So I basically got all my stuff here. All my used and used clothes are here. Jewelries, shoe set. This stuff I have to put in again, and kitchen stuff. Bed a mess. मैं क्या ही बोल रहा हूँ. I don't know which coat can suit me, but I don't know. मतलब कुछ होता होगा ना यार. ब्यूटीफुल मेस. हाँ, आई एम ब्यूटीफुल मेस आई वुड से. पर ठीक है, आगे वो सॉर्ट आउट एवरीथिंग. आज सॉर्ट आउट करके मैं सब कुछ सो जाऊंगी. दिस इज माई लाइफ गोल फॉर डे. पक्का सॉर्ट आउट करके सो जाऊंगी. Because there are so many things that I left unsaid. If you are
I just came back actually from that outing, and the food was so good, everything was so good. First time I tried that place. So the place was very good. The ambience was so good actually. और वहाँ पे तंदूरी पराठा थे instead of तवा पराठा. I'm a more of a fan of this तवा पराठा, but it was good. The price was good. Everything was good. अभी बस वापस आके रूम काफ़ी हद तक मैं सेटल आउट कर लिया मैंने, and I'm just applying. मैं नेल पेंट से मन कर रहा है नेल पेंट्स को अप्लाई करने का, और ठीक है। तो इसके बाद आई हैव लॉट ऑफ मेकअप टू सॉर्ट आउट। लेट मी शो। लुक, these all makeup I do have इतना सारा, and मेरे पास 2 किट्स है। वन आई टेक टू ऑफिस एवरी डे, दिस इज माई गो टू। अदर वन इज लाइक माई ये, दिस इज माई गो टू फॉर लाइक अदर पार्टी एंड स्टफ, एंड दिस वन इज मोर ऑफ लाइक ये ऑफिस वाली चीज़ है। तो आई हैव टू मतलब सेपरेट देम आउट। सो टिल द टाइमिंग आई एम गोना अप्लाई नेल पेंट। मैं सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए। सो यू नो व्हाट, समथिंग शिट हैज़ हैपेंड आज पूरे दिन में, and it was that, you know what, the God is compelling me to focus onto my goal and careers like anything, कि मैं और किसी से distract ना हो। that's why it's taking away all the distractions from my life। गुड़गांव में रहकर, कॉर्पोरेट में रह के मैं इतनी प्रो हो चुकी है ना दोस्तियाँ ख़त्म दोस्तियाँ करने में, कि लग वो चीज़ तो ख़त्म ही होगी अंदर से। जो रोना गाना मचता था ना पहले के टाइम पे, कि दोस्तियाँ ख़त्म हो रही है, लोग लाइफ से जा रहे हैं, आदत बन रही है आपको लोगों की, एंड आदत छूट रही है लोगों की। फिर आप सोचते थे कि यार हम कैसे रहेंगे इनके बिना, कैसे सब कुछ होगा, एंड यू नो व्हाट, एंड ऑल द शिट। गुड़गांव रह के सच बताऊँ, आई हैव बिकम वेरी वेरी डायनामिक सॉर्ट ऑफ पर्सन, कि आपको अपनी कदर हो गई है, आपको अपने साथ रहना आ गया, आपको अकेले रहना आ गया है। उल्टा आपको अकेले रहना ज़्यादा पीसफुल लगता होता है, बुरा लगना बंद हो चुका है। एंड तो ये चीज़ है, एंड आई हैव लिटरली फिगर इट आउट हाउ टू सोशलाइज हियर। मतलब instead of using the Bumble, Tinder and all this thing which people use here, I use the organic way of socializing. I basically use the LinkedIn. तो हमने डिसाइड किया था आज वाले व्लॉग के अंदर मोस्टली मैं टॉक अबाउट ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स आई यूज टू सर्वाइव इन ऑफिस। तो वन ऑफ द टिप एंड ट्रिक्स विच आई यूज बेसिकली इज टू सोशलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑफिस के अंदर। देर आर वेरी फ्यू पीपल, वेरी रियर पीपल जो ब्लेस्ड होते हैं, क्योंकि टीम इतनी कूल मिल जाती है, टीम में कोई ना कोई एक बेस्ट बडी बन जाता है, वर्क बडी उनका बन जाता है। फर्स्ट आई बिगिन विद लिंक्डइन, एंड दिस इज ऑल्सो आई रिकमेंड यू गाइस कि यार अपनी सोशल लाइफ बढ़ाने के लिए आपको यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, लाइक यू हैव टू बी इन पीपल मोर एंड मोर। आपको मोर एंड मोर पब्लिक होना पड़ेगा, ठीक है। आप सोचो कॉर्पोरेट में कि आपसे कोई बात करने आए, वो नहीं होता है। आपको कोई वैल्यू दे, वो नहीं होता है। ट्रस्ट में हम टेलिंग यू, मतलब किसी को किसी से क्या ही फर्क पड़ता होता है यार, किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता होता है, ठीक है। और आपको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दे, दैट इज़ अ थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, टू सर्वाइव इन कॉर्पोरेट्स आई वुड से दैट कि क्रेडिट्स बहुत खाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सुबह बात की थी यार, लोग सुनते नहीं आपकी, आपको सुनाना पड़ता होता है, अपने अंदर एक कैलिबर लाना होता है आपको, कि लोग आपको सुने, उस लेवल तक जाना होता है, उतनी मेहनत करनी होती है, ठीक है। एंड जो भी अपने कामनेस को नहीं खोना होता है। सेकेंड थिंग इज डायनेमिक्स रखना पड़ता है, आपको बहुत फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। आप अटैच नहीं हो सकते हो, आप इमोशनल नहीं हो सकते हो। जहाँ फिसले, जहाँ विक्टिम बने, ट्रस्ट में टेलिंग यू, लोग ऐसे हैं कि जहाँ विक्टिम बने आप ही को झुकाएंगे। चलो फिर यार, इनको फाइनली यू नो सामान को सेपरेट आउट करते होते हैं। सो दिस इज माई मेकअप फिक्सर विच विल गो इन दिस वन ऑब्वियसली। दिस इज माई गो, नॉट अ गो टू कंसीलर, दिस इज एक्चुअली वेस्ट ऑफ मनी। आई बॉट दिस कंसीलर, बट ये स्किन टोन का है ही नहीं। दिस अगेन माई गो टू थिंग, माई फेवरेट यू नो परफ्यूम, नॉट अ गो टू थिंग, अगेन अ गो टू थिंग, माई फेवरेट पाउडर। So beyond the capacity, it has cosmetics now, so I have to prune them out, but it, like I can't keep this for everyday purpose, obviously. Basically I remove these lip shades also, so that now everything is compact and concised, ठीक है। चल है, इसमें बस थोड़ा बहुत मुझे रखना पड़ा आई शेडो पैलेट एंड ऑल। So currently I'm reading this novel. This one is basically When I'm With You, one of my favorite novels till date by the Joy Datta. After such a long time, actually, I have got back into arts and novels and all. There was a time in graduation जब मुझे बहुत शौक हुआ करता, तुम्हें पता है, like I'm a product of Hansraj College, I'm a product of DU. DU का North Campus is famous for momos, second is novels। मतलब वहाँ पे और कुछ आपको मिले ना मिले, आपको हर थोड़ी देर चलने के बाद कमला नगर, यस कमला नगर में कपड़े मिल जाएंगे, आपको कॉस्मेटिक्स मिल जाएंगे, आपको बुक नॉवेल्स मिल जाएंगी, रूम पोस्टर्स मिल जाएंगे, आपको मोमोज मिल जाएंगे। कमला, आई एम लव विद दिस नॉवल। लाइक यार जो जोय ना इतना सेक्सी लिखता है, आई वुड से इतना अपफ्रंट लिखता है, इतनी सही डायलॉग लिखता होता है। मतलब यू कैन फील, मतलब यू कैन फील द करेक्टर, यू कैन फील द सिचुएशन। मतलब इतना ज़्यादा आर्टिकुलेट कर देता है चीज़ों को कि यार यू कैन फील एवरीथिंग गोइंग ऑन राइट देयर। एंड पता है रात के 11-12 बज रहे हैं, एंड पीजी में बाहर फ्लोर्स पे मस्त हल्ला गल्ला मचा पड़ा है, तो मोस्ट प्रोबेबली लड़कियां जागी हुई है। हॉस्टल का माहौल बना रखा है, एंड दिस समथिंग आई लव अबाउट पीजीज एंड ऑल। लाइक हॉस्टल फीलिंग आती है यार। आई कैन लिटरली हर्ड फ्रॉम इनसाइड द रूम कि यू नो मार पिटाई चल रही है, कुछ तो चल रहा है यार, चलम चल रही है, एंड दे आर प्लेइंग अराउंड, दे आर लाफिंग। सो
दिस रीज़न मुझे फ्लैट में कभी शिफ्ट नहीं करना यार, बैठते हैं थोड़ा सा. So I'm just basically winding my vlog here. I got so tired today, and today the lesson which I learned is ki in corporate shit gonna happen. A lot of things gonna happen. You have to move on like this, and always have to put a smile onto your face and live on. Trust me, I'm telling you, नहीं है time यार. Things लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं life में. हर कोई आगे बढ़ रहा है. There's no time to stop and wait for others या फिर रोना गाना मचाने का. ठीक है. Sometimes you will be cruel, sometimes you will be wise, sometimes you will be like mature, sometimes you will be like बुद्धू कि जो हो रहा है होने दोगे या फिर बचा लोगे अपने आप को या रोक लोगे. तो बस इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते होते हैं. आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. बाय.